Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8 of your syllabus, that is human health and disease. So वैसे तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है दैट इज डीलिंग विद सम जनरल नॉलेज एस्पेक्ट, जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं उसके रिलेटेड है, और कुछ चीजें आपको पता भी हैं लेकिन उसमें जो उसका साइंटिफिक रिलेवेंस है, डिटेलिंग है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. So let's begin with this chapter, human health and disease, that is chapter number 8. So first of all, what is health? So generally अगर हम किसी को पूछे तो हेल्थ के लिए ज्यादातर लोग फिजिकल हेल्थ की ही बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being. Physical भी, mental भी, as well as social well-being. Okay. Health is affected by genetic disorders, जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया, ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. इन्फेक्शंस, चेंज इन लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? तो योर फूड, वाटर, योर रेस्टिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड सम अदर हैबिट्स एज वेल. ओके, सो हेल्थ को गवर्न करने के जो कुछ क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो हेल्थ को गवर्न करते हैं? दैट इज फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया. और ये सभी क्राइटेरिया के हिसाब से ही इसके रिलेवेंस में हेल्थ है, जैसे फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ. So it is bunch of different type of the health, और इन सबको जब हम मर्ज करते हैं तब जाके पूरा जो हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं किसी भी पर्सन की, उसके बारे में हम कह सकते हैं. Mind influences your immune system through neural and endocrine system and thereby obviously your health. Okay, state of mind is very important. जैसे अभी हम सुन रहे हैं during this pandemic of corona, doctors are also saying be positive. Okay, आप positive vibes में रहिए, positive thinking करिए so that you can beat corona. ऐसा क्यों है? Because state of mind is very important. Because of this thinking process, positive thinking process particularly you can say, आपके न्यूरॉन्स जो है वो पॉजिटिविटी के सिग्नल्स भेजते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पॉजिटिविटी के रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, सो दैट अगर आपका बॉडी उस पॉजिटिविटी को केमिकल फॉर्म में गेन कर रहा है, विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग, तो आपके सभी सेल को पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, एंड सो दैट इट कैन बीट दिस टाइप ऑफ द चैलेंजेस. ओके, सो यहाँ पे एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ. बहुत सारे लोग आपने आप देखे होंगे आपके आसपास में who are actually focusing mainly on healthy body. Okay, they are going to gyms and exercise centers and all these things. Okay, but what about your healthy mind? And likewise, some people are only preparing themselves for healthy mind, but they are not doing exercise. So both the conditions are not good individually.
But if you are going to sum up both of them, obviously you are going to have a state of happy life. So when the influence functioning of organs or system of the body is adversely affected, it is called a disease. Okay, cells, tissues, organs and organ systems किसी को भी कुछ डैमेज हो रहा है and if they are functioning adversely, okay, normally जैसा फंक्शन होना चाहिए उनका वैसे वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, that condition of that particular tissue, organ or organ system is known as disease. So यहाँ पे हम अलग अलग तरह के डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So सबसे पहले उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं. Some of the disease are infectious. Okay, and these infectious diseases are transmitted from one person to another person, जिसको हम contagious भी बोलते हैं. Infectious, or contagious. Okay, बहुत बार इस चैप्टर में अभी डिस्कशन में एग्जाम्पल में कोरोना आएगा, because it is very live example for all of us and we are very nearly observing it, that's why. Okay, so corona is one such infectious disease, okay, which is spreading person to person. दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. So non-infectious disease are non-contagious. That means they are not transmitting from one person to another. लेकिन disease तो है, abnormality तो है वहाँ पे. Okay. So disease causing organisms. If we are talking about infectious disease, so disease causing organisms are called pathogens. Okay. Parasites are pathogens as they harm the host. Okay, parasites सबने पढ़ा हुआ है. Okay, so जो parasites हैं वो क्या करते हैं, किसी organism को as a host utilize करते हैं. ऐसा example आएगा इस chapter में. Okay, so they are also pathogens because उसकी वजह से host को negative impact तो होता ही है, उसकी growth, उसका reproduction, ये सब कुछ damage होता है. तो हेल्थ के लिए एक हाइपोथेसिस भी था. इट वाज नोन एज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, proposed by Hippocrates and Indian Ayurveda system. Okay, it states that health is a state of body and mind where there is a balance of certain humors. Okay, ऐसा वैसे तो हेल्थ स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, दैट इज करेक्ट, लेकिन उसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन, जो भी आपका हेल्थ होगा बॉडी का और माइंड का, उसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, इट इज एक्चुअली बैलेंसिंग सर्टेन ह्यूमर्स. और उस ह्यूमर्स के हिसाब से कुछ अलग अलग टाइप के ह्यूमर्स डिसाइड किए गए और उसके हिसाब से कुछ ह्यूमन डिसाइड किए गए. वो कौन कौन से थे? तो ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैगम. Persons with black bile belong to hot personality and would have fevers. Okay, तो वैसे आयुर्वेद में आज भी ये कंसेप्ट है, 3 तरह के वहाँ पे कंडीशंस दिए जाते हैं किसी भी पेशेंट के लिए. ओके, तो ऐसा यहाँ पे ब्लैक बाइल, दैट मीन्स द पर्सन हु आर हैविंग हाई टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी. ओके, एंड they are suffering from fevers. William Harvey disapproved this hypothesis. He discovered blood circulation and demonstrated normal body temperature in persons normal body temperature in persons with black bile using thermometer.
तो उसने एक साइंटिफिक एविडेंस दिया कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि ब्लैक बाइल पर्सन जिसको आपने क्लासिफाई किया है उसमें हाई टेम्परेचर हो कि, और उसको उसने चेक भी किया थ्रू थर्मोमीटर। दो तरह के डिजीज के बारे में हमने क्लासिफिकेशन देखा, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। उसमें से कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन, अब यहाँ पे मैन लिखा हुआ है तो मैन दैट इज अबाउट ह्यूमन रेस, इसको मैन और वुमेन इस तरह से कंसिडर नहीं करना है, ओके, दैट इज फॉर ह्यूमन रेस, ओके। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। आपका जो बोर्ड का पेपर रहता है उसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। फाइन। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के अगर कैटेगरीज देखें, उसका भी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कुछ है बैक्टीरियल डिजीज। उसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है टाइफॉइड। पहला कैटेगरी है बैक्टीरियल डिजीज, उसमें एक पहला एग्जांपल है बैक्टीरियल डिजीज का, वो है टाइफॉइड। तो उसका पैथोजन कौन है? देखिए एग्जाम में भी अगर 2-3 मार्क में पूछा जाता है तो आपको इसी वे में लिखना है, ओके। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं सब, एग्जाम में आपको पूरा वर्टिकल फॉर्मेट में, लेकिन आपका सेगमेंटेशन यही होना चाहिए आंसर का। पैथोजन कौन है टाइफॉइड का? तो दैट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये उसका पैथोजन है। ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये इन्फेक्ट करता है? सो इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर and migrates to other organs via blood. Okay, contaminated food and water, it is the source of this disease. Okay, contaminated food and water, और उसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। एंड हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ये हमने 11th में पढ़ा है। तो जब भी फूड एब्जॉर्ब होता है उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया भी माइग्रेट करके जाते हैं इन द ब्लड सर्कुलेशन, ओके। सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ है? तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सस्टेन्ड हाई फीवर, ओके, नियर अबाउट 100 and 101 डिग्री, 102 डिग्री फ़ारेनहीट तक, और अगर आप सेल्सियस के ग्रेड पे बात करें तो फिर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये एक तो सिम्टम है उसका। दूसरा होता है हेडेक, थर्ड इज वीकनेस, फोर्थ स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर। कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे पहले आपको बताएं, एक तो पर्सन को हाई फीवर रह सकता है, उसको हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, हाई फीवर की वजह से शिवरिंग भी होता है, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट तो होना ही है बिकॉज उसका जो रूट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। और सीवियर कंडीशन में इसके आगे भी हो सकता है, तो इंटेस्टिनल परफोरेशन, इसका मतलब क्या है? इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें पंक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं, परफोरेशन, पंक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि इंटेस्टिनल लाइनिंग जो एपिथेलियल लाइनिंग है, तो एपिथेलियल लाइनिंग का काम क्या होता है? सीमेंटिंग करना, बाउंड्री बनाता है, वो सीमेंटिंग करता है। लेकिन अगर वहां पे पंक्चर्स क्रिएट हो गए तो फिर क्या होगा? तो जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होना चाहिए आयंस वगैरह का, फ्लूइड का, वो कंट्रोल नहीं होगा। परफोरेशन है तो अब वो पूरा कैनाल बन गया, वहां से वो जा सकता है। मेम्ब्रेन का रोल यहाँ पे अब खत्म हो गया है, तो उसकी वजह से वाटर लॉस होगा बॉडी में,
और उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ जो है साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन अगर होगा, टाइफॉइड विच इज द डिजीज, ओके, उसकी वजह से ये सिम्टम्स पर्सन को हो सकते हैं। फाइन। साल्मोनेला टाइफी देखने में कैसा लगता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड शेप बैक्टीरिया, याद करिए 11th में आपने शेप पढ़े हैं बैक्टीरिया के, उसमें आप देखिए ग्राम नेगेटिव रोड शेप बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव रोड शेप बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ओके, पता कैसे चलेगा किसी पर्सन को टाइफॉइड का इन्फेक्शन है? डायग्नोसिस, इन्फेक्शियस डिजीज का डायग्नोसिस भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना के लिए डायग्नोसिस के लिए 2 तरह के टेस्ट काम कर रहे हैं, दैट इज RT-PCR और दूसरा है रैपिड एंटीजन। आप इस बार आपके 12th में RT-PCR के बारे में भी पढ़ेंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में भी आपके सिलेबस में है। चलिए, तो विडाल टेस्ट, ये टेस्ट का नाम है जिसके थ्रू आप डायग्नोसिस कर सकते हैं टाइफॉइड का। ओके, विडाल साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये टेस्ट डेवलप किया और उसी की वजह से ये नाम है विडाल टेस्ट। इट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज। आप इसको कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज बोल सकते हैं, आप इसको इन्फेक्शन ऑफ द साल्मोनेला टाइफी को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट बोल सकते हैं। फाइन। ये साल्मोनेला टाइफी का स्ट्रक्चर आप देखिए, तो ये रोड शेप का बैक्टीरिया है पूरा, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्लेजेला है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दे आर द फ्लेजेला। और आप ये 11th में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसके सरफेस पे 1 से लेके 5-7 फ्लेजेला हो सकते हैं। ओके, अब आप कुछ चीजें शायद आपके लिए नहीं आएगी। याद करिए आरबीसी में हम बोलते थे एंटीजन ए, उसके सरफेस पे एंटीजन बी के। ऐसे कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उसके सरफेस पे वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग नहीं होता है। उसके सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं विच आर डिजीज कॉजिंग, विच आर एक्टिंग एज एंटीजन, एंटी प्लस जन, एंटी प्लस जेनेरा, जेनेरा मतलब जीनस, एंटी मतलब ऑपोजिट, जो हमारा नहीं है, ऑपोजिट मतलब जो हमारा नहीं है, फॉरेन है। ये बैक्टीरिया हमारा तो था नहीं, कहीं से भी वाटर और फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड पानी पूरी आपने खाई है, उसके थ्रू हमारे बॉडी में आया। तो ये हमारा तो पार्ट नहीं है, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये किसी और का पार्ट है, दैट इज एंटी, ऑपोजिट, जेनेरा, ये हमारा नहीं है। तो जो हमारा नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? और जो हमारा नहीं हो सकता है ऑब्वियसली वो हमें कुछ ना कुछ तो हार्म करेगा, ये पक्का है। लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिज्म हार्म नहीं करता है, तो कौन हार्म करता है? इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए एंटीजन के जैसे काम करती है। तो साल्मोनेला टाइफी में ऐसे एंटीजन 2 हैं। एक देखिए, एक तो ये जो फ्लेजेला है, वो फ्लेजेला एक एंटीजन के जैसे काम करता है और उसके लिए नाम दिया गया है H एंटीजन। दूसरा, साल्मोनेला टाइफी जो है उसके सरफेस के ऊपर जो कोटिंग है बॉडी के, सेल वॉल, ओके, सेल वॉल जो है उसका, उस सेल वॉल के ऊपर जो लिपोपोलीसैकेराइड्स है वो भी एंटीजन के जैसे काम करता है और उसका नाम है O एंटीजन। तो साल्मोनेला टाइफी के पास 2 एंटीजन होते हैं, एक H एंटीजन, दूसरा होता है O एंटीजन। इतना डिटेल में आपके टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन नीट के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। H एंटीजन वो फ्लेजेलर एंटीजन है और O एंटीजन वो सेल वॉल एंटीजन है। लिपोपोलीसैकेराइड मतलब सेल वॉल का एंटीजन है। तो पूरा बैक्टीरिया नहीं, लेकिन ये 2 ऐसे हैं जो
हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए एंटीजेनिक है। जो हमारे लिए एंटीजेनिक है वो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन इंड्यूस करेगा। ओके फाइन। टेस्ट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे विडाल टेस्ट का प्रोसीजर आपको दिखाया है। वैसे यहाँ पे जो टेस्ट दिखाया है इस विडाल ट्यूब टेस्ट, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ। विडाल टेस्ट के दो फॉर्मेट हैं, एक है विडाल स्लाइड टेस्ट और दूसरा है विडाल ट्यूब टेस्ट। आपको अगर इफ यू आर सस्पेक्टेड फॉर टाइफॉइड, अगर डॉक्टर को ऐसा फील हो रहा है कि यू माइट बी हैविंग टाइफॉइड, तो डॉक्टर डायरेक्टली ये टेस्ट नहीं करवाएगा, पहले ट्यूब टेस्ट नहीं करवाएगा। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे विडाल, या डॉक्टर विडाल टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन लेबोरेटरी में पहले ट्यूब टेस्ट नहीं होगा, पहले स्लाइड टेस्ट होगा। और स्लाइड के ऊपर चेक किया जाएगा वेदर देयर इज इन्फेक्शन और नॉट, मतलब सिर्फ क्वालिटी, इन्फेक्शन है या नहीं है वो चेक किया जाएगा। सपोज उसमें उस पर्सन का रिजल्ट पॉजिटिव आया कि हाँ द पर्सन इज ऑब्वियसली इन्फेक्टेड, लेकिन वो इन्फेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, लेवल ऑफ इन्फेक्शन, ओके, वो चेक करने के लिए बाद में वो ट्यूब टेस्ट करेंगे, फिर बाद में आपको रिजल्ट देंगे। जिसको नेगेटिव है स्लाइड टेस्ट उसका, तो फिर आगे ट्यूब टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले मतलब आप बोल सकते हैं कि स्लाइड टेस्ट जो है वो क्वालिटेटिव है और ट्यूब टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव है। उसमें पता चलता है यस और नो, और यहाँ पे यस लेकिन कितना। ओके, तो क्या किया जाता है आप देखिए, दोनों में मेथड तो सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी फिक्स की गई है इसलिए ये क्वांटिटेटिव है, स्लाइड टेस्ट में क्वांटिटी नहीं देखी जाती है। ओके, लेकिन दोनों का रिएजेंट वगैरह अगर आप देखोगे तो सेम निकलेगा। तो क्या क्या करते हैं आप देखिए, एक तो पेशेंट जो है उसका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, और उस ब्लड को जो है उस ब्लड में से सीरम निकाला जाता है। आपने 11th में पढ़ा है ब्लड सर्कुलेशन में सीरम, तो उस पर्सन का सीरम जो है वो सेपरेट किया जाता है थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। कोएगुलेंट डाले जाएंगे और बाद में उसमें से जो बनेगा दैट इज सीरम, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। 11th आपने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है। तो सीरम को सेपरेट करके पहले स्टोर करेंगे, और उसके साथ साथ साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसके जो आइसोलेटेड एंटीजन है जो लैब में इन लोगों ने तैयार किए हैं, किट में आता है, ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन, ये एंटीजन यूज किए जाते हैं। और क्या करते हैं ये, पेशेंट का सीरम और ओ या एच एंटीजन दोनों में से कोई एक ओके ट्यूब में मिक्स किए जाते हैं। ओके, और सीरियल डाइल्यूशन करना है। ओके, सीरियल डाइल्यूशन करना है। सीरियल डाइल्यूशन का मतलब क्या है, तो सीरियल डाइल्यूशन में आपने पहली ट्यूब में, सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ट्यूब में आपने टोटल क्वांटिटी लेनी है 10 ml, 10 में से 9 ml आपने सीरम लिया, 1 ml आपने लिया एंटीजन, तो टोटल 10 ml। अब ये टेस्ट इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होता है, ओके, क्योंकि 9 ml सीरम मतलब पर्सन का कितना ब्लड ड्रेन करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल इजी समझ में उसके बारे में ये हाइपोथेटिकल नंबर्स बताता हूँ। 10 ml क्वांटिटी आपको इसमें चाहिए, और उसमें आपने लिया है 9 ml आपका सीरम, 1 ml आपने एंटीजन लिया है O या H, तो ये गया 1:10 डाइल्यूशन। और अगर आपने 8 ml सीरम लिया, 2 ml आपने एंटीजन लिया, दैट इज 1:20 डाइल्यूशन। 8 में 10 में से 2 ml आपने लिए हैं एंटीजन। अब क्या करना है, इस 10 में से 2 ml निकाल के, इस 10 में से 2 ml निकाल के ट्यूब नंबर 2 में डालना है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाए। और इसमें ऑलरेडी 8 ml सीरम सब में डाला हुआ है, तो 2 ml निकाल के इसमें डाले, तो ये हो गया 1:10
40 टाइम डाइल्यूटर। अब 2 ml इसमें से निकाल के आप इसमें डालिए तो 1:80 टाइम डाइल्यूशन, 1:160 टाइम, सभी मतलब 1 by 1 सभी में से 2-2 ml 1 by 1 निकाल के आगे वाली ट्यूब में डालते जाइए। लास्ट ट्यूब जो रहेगा उसमें से भी 2 ml निकाल के फिर आपको उसको ड्रेन कर देना है। सभी में वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, दैट इज टोटली 8 ml बाद में। ओके, और आपको क्या चेक करना है, एग्लूटिनेशन। अब ये क्या है एग्लूटिनेशन, तो अभी के लिए आप ऐसा याद करिए, ब्लड ग्रुपिंग आपने देखा था, ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता था, एग्लूटिनेशन, ब्लड का क्लम्पिंग होता था वहां पे, याद करिए आरबीसी का, अगर जिसमें क्लम्पिंग हो रहा है वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर स्लाइड ए वाले स्लाइड में हो रहा है क्लम्पिंग तो ब्लड ग्रुप ए है, बी वाले में हो रहा है तो ब्लड ग्रुप बी है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दैट इज एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग हो जाएगा। और इस चैप्टर में एग्लूटिनेशन आगे भी है। ओके, एग्लूटिनेशन होगा और उस एग्लूटिनेशन का लेवल कितना है, कहाँ पे एग्लूटिनेशन देखने मिलता है। देखो यहाँ पे 1:20 में नेगेटिव, मतलब एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, 1:40 में नहीं हुआ, 80 में नहीं हुआ, लेकिन 1:160 में हुआ, 1:320 में हुआ, तो ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये जो है 1:160, वहां पे अगर हमें इतना डाइल्यूटेड है फिर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ज्यादा डाइल्यूशन है ना यहाँ पे, फिर भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, मतलब इस पर्सन को इन्फेक्शन है साल्मोनेला टाइफी का। सो ये जिस ट्यूब में आपको देखने मिलता है उस ट्यूब को बोला जाता है टाइटर वैल्यू, टाइटर, TITRE, टाइटर। ओके, मतलब डॉक्टर पूछते हैं इसका टाइटर कितना आया है, यार पैथोलॉजी लैब वाले रिपोर्ट में लिख के देंगे कि इसका, इस पेशेंट का टाइटर वैल्यू इतना है, मतलब डॉक्टर समझ जाएगा बाद में कि टाइटर वैल्यू इतना है तो इन्फेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, और उसके हिसाब से वो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, उसको जो मेडिसिन का कोर्स प्रिस्क्राइब करना है वो टाइटर वैल्यू के हिसाब से डोसेज वगैरह उसका फिक्स होगा। ओके, यही टेस्ट स्लाइड में पहले किया जाता है, लेकिन वहां पे ये टाइटर और ये सब नहीं चेक करना है, सिर्फ ड्रॉप डालना होता है एंटीजन O का या एंटीजन H का, और पर्सन जो है उसके सीरम का भी ड्रॉप, उसको मिक्स करके सिर्फ एग्लूटिनेशन चेक करना है। अगर एग्लूटिनेशन है तो पर्सन पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस उसको टाइफाइड नहीं हुआ है। अगर एग्लूटिनेशन स्लाइड में आया तो फिर ये सेकंड प्रोसीजर होगी, दैट इज ट्यूब टेस्ट। ओके, ऐसा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑफ टाइफाइड मैरी। ओके, टाइफाइड मैरी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है यूएसए का। मैरी मेलोन करके एक लेडी, now she is nicknamed as Typhoid Mary, was a professional cook. She was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. वो मैरी मेलन का क्या हुआ, तो मैरी मेलन एक प्रोफेशनल कुक थी, उसके रेस्टोरेंट में जो भी लोग खाने आते थे, ओके, शी वाज टाइफाइड कैरियर, उसके यहाँ पे जो भी वाटर वगैरह यूज होता होगा रेस्टोरेंट में, शायद वो कंटामिनेटेड होगा, उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड रहती थी, और उसके जो कस्टमर्स थे वहां पे, जो खाने आते थे वहां पे रेस्टोरेंट में, वो भी इन्फेक्टेड हो जाते थे, और ऐसा बहुत सालों तक चला। और वो जो सिटी में थी वहां पे इट वाज एन आउटब्रेक ऑफ द टाइफाइड। ओके, क्योंकि कंटेजियस है, इन्फेक्शियस डिजीज है, पर्सन को टच करने से नहीं फैलता ये, लाइक कोरोना वगैरह, लेकिन जो पर्सन टाइफाइड से इन्फेक्टेड है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में टाइफाइड के बैक्टीरिया है, एंड इफ द पर्सन इज गोइंग फॉर ओपन डेफिकेशन, ओके, फिकस वगैरह उसका डिस्पोज हो रहा है इन द ओपन एनवायरमेंट, तो वहां से फिर वो बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं, वो फिकस वगैरह कंटामिनेट करता है सॉइल को, सॉइल कंटामिनेट करती है वाटर को, वाटर मतलब वाटर रिजर्वायर, और फिर वही पानी सबके घर में जाता है।
ओके, और वो पानी जो पिएगा विदाउट फिल्ट्रेशन और सम ट्रीटमेंट्स, पर्सन में गेट टाइफाइड। और ऐसा उस सिटी में बहुत साल चला है। और इसको आप गूगल करेंगे मैरी मेलोन, टाइफाइड मैरी, तो आपको उसको जो विकिपीडिया पेज उसका मिलेगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसको यूएसए गवर्नमेंट ने फिर डिपोर्ट कर दिया किसी और जगह पे, ओके, बिकॉज शी वाज अ कल्प्रिट। ओके, डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वेंट यूरोप, और वहां से फिर वो अपना पूरा जो लुक्स वगैरह है सब चेंज करके, अपना नाम वगैरह है वो सब चेंज करके वापस यूएसए आई, और वापस उसने वही बिजनेस शुरू किया, दैट इज अ रेस्टोरेंट, और वापस लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू किया। एंड अगेन शी कैप्चर्ड, और फिर उसको लाइफ टाइम के लिए यूएसए से डिपोर्ट कर दिया गया। ये उसकी स्टोरी है, आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग। सो दिस इज अबाउट टाइफाइड, ओके। दूसरा जो डिजीज है दैट इज न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया में क्या होता है, इट इन्फेक्ट्स लंग एल्वियोली, न्यूमोनिया के। तो न्यूमोनिया नाम ही इसलिए दिया गया बिकॉज इट इज रेस्पिरेटरी, ओके। The alveoli get filled with fluid leading to respiratory problems। हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है 11th में। देखिए 11th में जो पढ़ा है वो यहाँ पे बेस तो बन रहा है, ये याद रहना चाहिए एल्वियोली क्या होता है, कहाँ पे होता है, राइट। सो एल्वियोली जो है वैसे तो एयर सैक्स हैं, ये एयर बैग्स आप बोल सकते हैं, उसमें एयर फिलअप होनी चाहिए। लेकिन न्यूमोनिया में क्या होता है कि ये जो एयर बैग्स हैं आपके लंग्स के अंदर, वो सारे के सारे फ्लूइड से फिल्ड अप हो जाते हैं, और जब फ्लूइड से फिल्ड अप होते हैं तो फिर ऑक्सीजन के लिए उतनी जगह नहीं रहती है वहां पे, मतलब ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएंगे, ऑक्सीजन इतना आपके बॉडी को नहीं मिलेगा, तो उसके बाकी कंसिक्वेंसेस हैं वो शुरू हो जाएंगे, ओके। सो इन दैट वे इट इज क्रिएटिंग सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल एयर सैक्स, ओके, उसका स्ट्रक्चर आप देखिए, एयर सैक्स मतलब एल्वियोली, और ये इन्फ्लेम्ड एयर सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड, ये फ्लूइड से इन्फ्लेम्ड मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है यहाँ पे, ओके, पूरा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी होंगे। कौन है इसका कल्प्रिट पैथोजन, कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और दूसरा एक बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा एक वायरस भी है, लेकिन उसका नाम है इन्फ्लुएंजा सिर्फ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो बैक्टीरिया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो उसके पैथोजन है जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है। तो आप देखिए दोनों के स्ट्रक्चर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसके नाम में ही है, स्ट्रेप्टो दैट इज चेन, कोकस कोकाई शेप मतलब स्फेरिकल शेप के, याद करिए अगेन 11th। तो सभी देख सकते हैं आप बैक्टीरिया चेन में अरेंज है, और कैसे स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया हैं और चेन में अरेंज है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो दैट इज चेन, कोकस दैट इज कोकाई शेप, और दे आर कॉजिंग न्यूमोनिया, दैट्स व्हाई न्यूमोनी। दूसरे हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिलस दैट इज द वर्ड फ्रॉम बैसिलस, ओके, तो रोड शेप के बैक्टीरिया है, ओके, और इन्फ्लुएंजा, ओके, वो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है, इसीलिए इसका नाम भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ऐसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सो रेस्पिरेटरी है तो ऑब्वियसली inhalation, so inhaling the droplets or aerosols released by an infected person। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसने स्नीजिंग वगैरह किया, तो उसके स्नीजिंग के थ्रू ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स जो क्रिएट हुए, ओके, वो अगर आप इनहेल कर रहे हैं। दूसरा शेयरिंग ग्लासेस,
ओके, स्पेक्स वगैरह एंड यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, क्योंकि उस सरफेस के ऊपर ये बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। ओके, सिम्टम्स क्या हैं? सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे पर्सन को, फीवर, चील्स, कफ, हेडेक, ये सब हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जा रही है बिकॉज उसके एल्वियोली तो इन्फ्लेटेड हो चुके हैं, दैट्स व्हाई। चेस्ट में आप देख सकते हैं ये इन्फेक्शन दिखाया हुआ है आपको एक्सरे में, राइट। सीवियर केसेस में क्या होगा? इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। अब ऐसा क्यों होगा? रेस्पिरेटरी है तो लिप्स और फिंगर नेल्स ये ग्रे या ब्लूइश कलर के कैसे हो सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, डिजीज है सॉरी, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम मिलेगा बिकॉज आपके एल्वियोली ठीक से एयर ट्रांसमिट नहीं करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम मिलेगा तो बॉडी के जो एंड्स हैं वहां तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचने वाला नहीं है, इसलिए आप देखो फिंगर टिप्स, नेल्स, ओके, वो ग्रे हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ऐसे लिप्स भी जो हैं वो ग्रे टू ब्लूइश कलर के होते हैं न्यूमोनिया में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वी हैव कंप्लीटेड विद बैक्टीरियल डिजीज। 2 बैक्टीरियल डिजीज आपके सिलेबस में दिए गए थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन नेक्स्ट lecture we will be discussing about you can say viral disease, okay। तो वायरल डिजीज में कुछ वायरल डिजीज तो ऑलरेडी दिए ही गए हैं, कॉमन कोल्ड और ये सब, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम अभी की जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अंदर आने ही वाला है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, सिंपल है, इजी गोइंग है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है। आप पूरे चैप्टर को उसके पार्ट के हिसाब से 1 पेज में एक एक पार्ट को आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज, 1 पेज में सभी इन्फेक्शियस डिजीज का ये टेबल आप बना सकते हैं, ऐसे कुछ बना के, पैथोजन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कौन सा है, ऐसा आप टेबल बना सकते हैं। तो पूरा सेक्शन उसमें 1 पेज में कवर हो जाएगा और नीट के लिए ये आपका एक रेडी रेगनर बन जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, स्कोरिंग चैप्टर है, ओके, इजी गोइंग है, ओके, फाइन। सो हैव अ नाइस डे।